Students, today we are going to study the need of three-phase supply. We have completed that delta and star conversions. So here we are going through a very theoretical portion. We'll see the difference between three-phase and single-phase supply. Also, we'll study about the advantages. In the three-phase supply, basically voltage produced by the single-phase supply is very less as when we compare to the practical industrial load supply. Hence, in an industrial load, the equipments, the appliances are very huge. It means that the load conserved power is very large. That's why they need a high power supply voltage. They will not work on the single phase power supply. That's why they are working on a single three phase supply. तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी हैवी मोटर्स और मशीनरी को चलाने के लिए थ्री फेज सप्लाई का यूज किया जाता है. जो सप्लाई हम लोग घर पे यूज कर रहे हैं, जो सप्लाई छोटे अप्लायंसेस में यूज हो रही है, छोटी मोटर्स वगैरह में यूज हो रही है, दैट इज दी सिंगल फेज सप्लाई. तो बेसिकली इंडस्ट्रीज में ये हैवी लोड के लिए यूज किया जाता है. सो इंडस्ट्री हैवी लोड रिक्वायर पॉलीफेज सप्लाई. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय फेज. Phase is like a branch or circuit or winding, we can say that, in which the current is flowing, and we are finding that phase, how much means current is flowing to the windings and all. And while poly means many, so many means many currents, many phases are there. That's why we are saying that the industrial heavy load is a polyphase supply. So in a polyphase system we are studying now, there are many independent AC voltages that are present simultaneously, but it depends upon the number of phase also, that how a system having number of phase, if it is having a three phase or anything else it can have. So let us start with the three phase system. In this, the magnitudes and the frequency of AC voltages are same. तो मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी एसी वोल्टेज की सेम रहेगी. इट मींस जो हम इसका फेस वोल्टेज फेस डिफरेंस निकालते हैं ना, जैसे मैंने आपको स्टार का भी बताया था, उसमें क्या करते हैं 360 डिग्री एंगल होता है, जो हमारा टोटल एंगल, जो हम लोग मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाया था, उसको हम अगर 3 से डिवाइड कर दें. 3 से क्यों? क्योंकि थ्री फेज सिस्टम है, तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा, 120 डिग्री एंगल ईच. तो मतलब तीनों के तीनों फेज 120 डिग्री एंगल से मतलब सेपरेटेड हैं. तो अगर एडवांटेजेस की बात की जाए थ्री फेज और सिंगल फेज सिस्टम की, तो उसमें क्या होता है, जो आउटपुट होती है हमारी थ्री फेज मशीन की, वो हमेशा बड़ी होगी हमारी आउटपुट ऑफ सिंगल फेज मशीन की, चाहे उसका साइज कैसा भी हो. मतलब अगर सेम साइज की तब भी, क्योंकि उसका जो मटेरियल है इतना कैपेबल है कि वो थ्री फेज सप्लाई जो है उसको जनरेट मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है, बट एज कम्पेयर टू सिंगल फेज वो इतना नहीं कर सकता. तो आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ द वाटर मोटर. So water motor at home and water motor at the industry. So there is a huge difference. The home motor will work on the single phase supply, as when we compare to the industrial motor, it will work on a three phase supply, but it has to suck very huge power, very huge amount of water. As compared to the home motor, it doesn't have to suck that huge amount of water. It have to suck only a few, that the requirement of the home. That's why the machine which we use in the industry is a very huge, and having work will be performed on three phase system. The next point is transmission of three phase power is very much economical. Yes, it is very true, as it needs less copper. So the machinery, it needs less copper. The winding is made up of copper, but it is very less as conducting material as compared to the single power. So in the single power, in the single phase also, we can say that in single phase machines or single phase conducting machines, the copper consumption is very high. That's why the heating capability of that material is also very high. But instead of that, we can use the three phase devices which consume very less copper, also economical. That's why we have shifted towards the three phase supply. The other one is that rotating magnetic field, which we can say that RMF, is generated in in three phase supply. Therefore, three phase supply machines are self starting.
as we are having rotating magnetic field, so that in three phase supply we can say that जो three phase machines होती हैं उनको हम self starting बोल सकते हैं. With the help of single supply we cannot produce RMF. अब सिंगल फेज सप्लाई के साथ हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, जिस वजह से हम उसको नहीं कह सकते सेल्फ स्टार्टिंग, जिस वजह से हम उसको सेल्फ स्टार्टिंग नहीं कह सकते. That's why the three phase are self starting. Sometimes हम कहते हैं self starting motors and all. So अब क्या है, three phase supply give rise to three signals phase, single phase and supply, but vice versa is not possible. This is also the important point. The other point is, and the last point is, rectified DC output voltage is smoother, having less ripples. अब क्या होता है, जो हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रही है ना, अब मैंने आपको बताया था कि अब आप देखो, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू स्क्रॉल इट डाउन सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड. अब क्या होता है, सपोज ये आपके पास एक ग्राफ है जहां पे आपको ये आपको सपोज आपकी ये आ गई आपकी AC, सॉरी फॉर द डायग्राम, लेट्स ड्रॉ इट अगेन. ये आपका ग्राफ है सपोज, और लेट्स टेक द कलर. तो आपका ये आपका जा रहा है AC सिग्नल, सपोज ये इस तरीके से आपका जा रहा है AC सिग्नल. तो इस तरीके से आप ये थोड़ा सा मान के चलिए, इस तरीके से आपका सिग्नल जा रहा है, ठीक है. देन आपके पास अगर हम बात करें DC सिग्नल की, तो मैं साथ में बना लेती हूँ, इस तरीके से है. तो यहाँ पे आपका जा रहा है हमारा DC सिग्नल, इसके पैरेलल बिल्कुल. So now you can see that what is the main difference. यहाँ पे एक साइकिल फॉलो कर रहा है, यहाँ पे एक साइकिल हमारा फॉलो हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव साइकिल, फिर यहाँ पे नेगेटिव साइकिल, यहाँ से नीचे आप देखोगे. सो इस तरीके से मतलब AC हमारी जा रही है, ये AC आ गई हमारी, ये आगे AC, ये आगे हमारी DC. DC और AC में यहाँ पे एक मेन डिफरेंस आप देखो, यहाँ पे कंप्लीट साइकिल होता है, पॉजिटिव साइकिल भी नेगेटिव साइकिल भी. और DC में क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज, मतलब यहाँ पे भी सेम, इस पॉइंट पे भी सेम, इस पॉइंट पे यहाँ पे चेंजेस आ रही है, मतलब जहाँ पे चेंज आ रहा है वो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है, और जहाँ पे हमारा सेम आ रहा है वो हमारा DC करंट है, ठीक है, DC करंट. तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट करंट है, मीन्स कांस्टेंट है. अब ये तक तो डिफरेंस हमारा आ गया हमारा AC DC के बीच. अब अगर हम बात करें रिपल्स, रिपल्स क्या होते हैं, अगर हमारा तो ये वाला आ रहा है DC करंट सपोज, अगर कुछ हद तक रिपल्स हैं तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन होगी, इट मींस एग्जैक्टली AC तो नहीं है, इस तरीके की वेरिएशन है. तो ये हमारा आ गया रिपल्स दैट आर अकरिंग इन DC वोल्टेज. अगर रिपल्स थोड़े से ज्यादा है तो इस तरीके से आ रहा है, हमारे DC वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो ये हो गया रिपल्स. सो ये कहने का मतलब है, रेक्टिफायर जो है, जो DC आउटपुट वोल्टेज देता है वो स्मूथ तो होती है, लेकिन उसमें थोड़े से रिपल्स होते हैं, बहुत कम, मतलब बहुत कम, ये वाले रिपल्स होते हैं. अगर बहुत ज्यादा होते तो ये रिपल्स होते हैं, लेकिन अगर इस तरीके का फॉर्मेट हो जाए तो वो AC वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये था हमारा आज का डिफरेंस, और कुछ हद तक हम कह सकते हैं हमने आज पढ़ा सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई का मेन डिफरेंस. तो आई होप आप सबको ये चीजें समझ आई होंगी, तो आप लोग प्लीज इसको एक बार रिवाइज करना और बाकी सब चीजों को भी ध्यान से पढ़ना.